few years of your life like most people won't, so that you can spend the rest of your life like most people can't. Our next guest for today will be giving us insight on possibilities ahead, incubation cells and startups. We have with us Mr. Pradeep Karambelkar. We are so glad to have you, sir, here. Sir is a passionate entrepreneur, startup mentor, seed investor, and founder of Vision Biz Network. Sir has a great experience in various organizations as founder and director. His flagship company, Vision Invest Tech Pvt Limited, which has started in 2004, is investment product distribution company. He is executive director of BNI Bhopal. He brought BNI to Bhopal, which is world's largest referral marketing platform. He founded and established Seva Health. He is publisher of Investment Avenues. Mr. Pradeep Karambelkar is one of the key builders of startup ecosystem of Madhya Pradesh. He is also the founder of, director, and MP's first government-approved private incubation center, VASPL startup of Bhopal, including Physicure, T-Friends, Brain Seeders, and Pathfinders. He is also regional partner in Venture Catalyst, one of the top startup funding platform of India. Pradeep sir is on board in various government, private institution and university incubation center as a consultant to set up and build startup ecosystem. He is president of Madhya Pradesh and chairman of Bhopal Management Association, BMA. He is also state council member with CII MP. He is past chair MP, PhD, CCI, and past chairman, CII Bhopal. He is with Lion Club International for 20 years. He has been awarded with Franchises India's prestigious startup coach of the year 2021. He is also honored as Pride of MP by Dainik Bhaskar Group, Icon of Bhopal by Rajasthan Patrika, Madhya Pradesh Bhopal Ratna by MP Press Club, and Business Leadership Award by Indian Achievers Forum. Now, I would like to request Mrs. Bhasa ma'am to welcome Mr. Pradeep Karambelkar sir with a bouquet. Yes, sir. God bless you. Yes, sir. Hello. Moving ahead, I would like to invite Mr. Pradeep Karambelkar sir to come and share his views and valuable experience with our students. Welcome, sir. नमस्ते। खाना खाने के बाद थोड़ा धीरे बोलता है क्या आदमी? जोर से बोलना। नमस्ते। और मैं लंच करके नहीं आया क्योंकि एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था यंग लोगों से मिलने का कि मैंने लंच नहीं किया। मैं आपसे बात करने के बाद लंच करूंगा, ठीक है? आवाज़ आ रही सबको आखिरी तक? सो द बेस्ट पार्ट हैपन थैंक्स टू भाषा मैम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक्स टू मैडम। ये ठीक है? मैं क्या रोज टीवी और वीडियो पे भी आता हूं तो मुझे आदत है कैमरे, ठीक है? तो बैठ जाइए आराम से, फिर अपन बात करेंगे। तो आप सब 12वीं पास करके आए हो और इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करके आए हो और मैं नहीं कर पाया। मैंने पीईटी दी थी और मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं बहुत खुशी से आपको बताता हूं कि मेरे स्टार्टअप्स में लगभग 60% इंजीनियर हैं, 70% इंजीनियर्स हैं। आई सो फार मेंटर्ड ओवर 100 स्टार्टअप्स। तो 100 से ज़्यादा स्टार्टअप्स की जर्नी में मैं साथ में रहा और उसमें से 70% इंजीनियर। सो बिग क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू।
और आपको मालूम है कि हम इसके पहले मैडम ने मुझे बतलाया कि आपको शायद फॉरेस्ट और उन सब के बारे में बतलाया गया, एनवायरनमेंट के बारे में, राइट? सो आपको मालूम है हम सब एज ऊपर वाले, सर मैं मंच से नहीं उतर रहा हूं भी, यहीं से। सो मैं स्वागत करता हूं वाइस चांसलर साहब का, एंड आई एम ग्रेटफुल दैट आप यहां पर हैं सर। थैंक यू सर। तो आपको मैं बतलाऊं, ऊपर वाले ने भी सारे जानवरों को और सारे लोगों को एक काम सिखाया है। वो क्या है? अपना काम सब अपने आप करते हैं। एम आई राइट? और हम भी उसी में आते हैं, आत्मनिर्भर, खुद का काम खुद का करने वाले। ठीक है, मैं कोई बहुत टेक्निकल जार्गन्स वाले आज का भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मैं 12वीं से कॉलेज में गया था तो मुझे भाषण सुनना बहुत अच्छा नहीं लगता था। एम आई राइट? पक्का ना? सो अपन सारी वो वाली बातें करेंगे जो आपकी और मेरे उम्र की है। मैं आपसे 2-4 ही साल बड़ा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं हूं, 2-4 ही साल बड़ा हूं। और उसका कारण है, उसका भी कारण है, क्योंकि आप सबके कारण मैं यंग हूं। मैं जब स्टार्टअप की दुनिया में आया और मैंने स्टार्टअप्स को मदद करना तो नहीं कहूँगा, मेरा अपना शौक था लोगों के साथ काम करना। तो यंग लोगों के साथ रहने से एक फ़ायदा होता है कि आप भी बहुत हद तक यंग हो जाते हैं। एंड आई थिंक दैट आई हैव ऑलवेज जेलस विथ द डिग्निटरीज इन फ्रंट ऑफ मी, जो हमेशा यंगस्टर्स के साथ रहते हैं। हम जो बिजनेसमैन होते हैं, हम लोगों को यंगस्टर्स के साथ रहने का मौका कई बार कम मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे अपने अपने कैबिन में बैठते जाते हैं, यंगस्टर्स से मिलना कम हो जाता है। बट आई एम वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट कि पिछले 5 सालों में मैंने जैसे कहा, मैं 1000 से ज़्यादा स्टार्टअप से मिला हूँगा, 100 से ज़्यादा लोगों को मैं मेंटर करता हूँ, और हिंदुस्तान के लगभग हर फोरम पे मैं स्टार्टअप्स को सुनता हूँ। सो उससे मुझे लगता है कि यू आर द पीपल हु आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू, जो मैंने आपसे कहा मैं 4-5 साल आपसे बड़ा हूँ। सी, तो अपन सब जनरल बातें करेंगे, ठीक है? आप फिर बाद में मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछिएगा, आपके दिमाग में जो जो आ रहे होंगे, जितने प्रकार के विचार आ रहे होंगे, ठीक है? और इस उम्र में सबको एक ही ख्याल आता है, और मैंने अपनी स्लाइड भी वही रखी है, वो उसे बदलने के लिए दे दो मुझे, है क्या पॉइंटर? वो चलिए नेक्स्ट कर दीजिए। सो इन सबको, इन सज्जन को सब लोग जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि इनके आने से पहले एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते थे, ठीक है? बट ही हैज़ गिवन अ विजन टू इंडिया इन 2016, जब इन्होंने कहा कि भारत को जॉब क्रिएटर्स ज़्यादा चाहिए, जॉब सीकर से ज़्यादा, ठीक है? तो मैं आपसे सबसे सरल सवाल पूछता हूँ, आप में से कितने लोग नौकरी देने वाला बनना चाहते हैं? अरे वाह, बहुत सारे हैं। और दूसरा एक और, उसके आगे का भी, आप में से कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? अगर जो नहीं बनना चाहते कृपया हाथ नीचे ही रखें, मैं देखना चाहता हूं कौन बिल्कुल ही नहीं बनना चाहता। और आधा हाथ मत उठाइएगा, पूरा उठाइएगा। नहीं, सभी बनना चाह रहे हैं। उनने कुछ ने 2 भी उठाए सर हाथ। सो वंडरफुल, वंडरफुल, बिग क्लैप फॉर यू। क्योंकि मैं आपको बतलाता हूं, आप जिस एरा में पैदा हुए ना, बीसी साहब भी सामने बैठे, और हम लोग इतने खुश नसीब नहीं थे, हम लोग इतने खुश नसीब नहीं थे जितने आप लोग। आप सोच के देखिए, आज की जनरेशन में आप जब कुछ करने जाने वाले हैं तो वाइस चांसलर साहब खुद बैठे हैं, वो चाहते हैं कि आप बिजनेसमैन बने, स्टार्टअप बने। सरकार चाहती है कि आप बने, उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन चाहते हैं कि बने, इन्वेस्टर चाहते हैं हमसे पैसे ले लो पर आप बने। मुझे नहीं लगता इकोसिस्टम में इससे बेहतर टाइम कभी आया होगा। मुझे तो याद नहीं पड़ता, जब हम लोग पढ़ते थे तो सारा इकोसिस्टम आपके पीछे पड़ा हो कि आप कुछ बन जाओ, ऐसा कभी नहीं हुआ। बाकी लोग केवल पढ़ते थे, फिर अपनी नौकरी ढूंढते थे और चले जाते थे। ये पहला ऐसा समय पिछले 10 साल में मैं देख रहा हूँ, खास तौर पे वो बढ़ता जा रहा है, जिसमें वाइस चांसलर साहब के साथ सब लोग मुझसे, जब भी वो मुझसे मिलते हैं, मैं उनसे मिलता हूँ, तो मैं उनसे वो पूछते हैं कि भाई लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप आनी चाहिए, लोग ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयबल बना सकें। ये सोच आपकी पीढ़ी से शुरू है, तो अगली पीढ़ी भी आपकी है। तो जो बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट है, अब वो बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना है, ठीक है? तो वो बदल गया है थोड़ा, वो
बीसी और एसी बदल गया। अब आफ्टर कोरोना की जो आपकी जनरेशन है, वी आर ऑल योर स्टूडेंट्स। मैं अभी 15 मिनट पहले मैडम से चर्चा कर रहा था कि मेरा एक स्टार्टअप, उसको अभी 100 करोड़ की वैल्यूएशन हुई और उसको 15 करोड़ रुपए मिले। 21 साल का है वो, आपसे साथ का ही होगा। वो 21 साल का है, तो अब वो मुझे सिखाने आता है कि सर पिच कैसे करते हैं। सर पिच, क्योंकि मेरे ज़माने में बिजनेस को बेचा ही नहीं जाता था, सब लोग अपने बिजनेस को अपने से पकड़ के बैठे रहते थे। और आज का कैसा समय है, जब यंगस्टर्स कहते हैं हम तो आइडिया लाएंगे, बिजनेस बनाएंगे और उसको, एम आई राइट, ऐसे ही सोचते हैं अपन सब। तो आज अपन इसी पे बात करेंगे कि अपन अमीर कैसे बने। और आप यहाँ रह के भी बन सकते हैं। और अलग अलग शहरों से आएंगे आप लोग, की सब एक ही जगह से हैं? अलग अलग शहरों से। तो शेर की कहानी सुनेंगे। बहुत से लोगों ने शेर की कहानी सुनी भी होगी, व्हाट्सएप पे पढ़ी भी होगी, फिर से मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सो जंगल का राजा सारी दुनिया में कौन होता है? शेर होता है, लॉयन होता है। कोई डाउट है इसमें? दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? सबसे तेजी से पेड़ पे चढ़ने वाला जानवर? सबसे अच्छा गाने वाला? कोयल। और सबसे बड़ा जानवर? अच्छा, इसमें से किसी में शेर का नाम क्यों नहीं आता? आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। शेर के पास ऊपर वाले ने एक भी बेस्ट क्वालिटी नहीं बनाई, एक भी बेस्ट नहीं बनाया। न वो तेज दौड़ता है, न वो शरीर में सबसे बड़ा है, न वो गाता अच्छा है, न वो पानी में तैरता है, न वो पेड़ में चढ़ता है, इसमें से कुछ भी वो नहीं करता। लेकिन जंगल का राजा शेर। एम आई राइट? सोच सकते हैं कैसे और क्यों? कोई भी बोल सकता है। आप सोच के देखिए, एक शेर है, उसको भगवान ने एक भी बेस्ट क्वालिटी नहीं दी, एक भी, फिर भी राजा उसी को रखा। और सब जगह अनडाउटेबली वही राजा है। हमारे सामने भी खड़ा होता है तो राजा कौन है पता? अभी से एमएससीटी में निकल गया था तो रोज उसी के फोटो देखते थे, है ना। कान्हा में जाओ, कहीं भी जाओ, अगर शेर नहीं दिखा तो ऐसा लगता है ट्रिप ही बेकार हो गई। एम आई राइट? नथिंग ग्रेट अबाउट हिम। गॉड ने उसको ऐसा कोई बेस्ट नहीं दिया, फिर भी वो राजा है। कोई व्यक्ति एक एवरेज हर स्किल है। और वो क्यों जंगल का राजा है? एटीट्यूड के कारण और विल पावर के कारण। चलिए ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, वो सबसे ज्यादा जंगल का राजा इसलिए है कि उसके ऊपर पास सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा है। क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर भरोसा बहुत ज्यादा है। वो जिसके सामने खड़ा होता है वो कभी ये सोचता ही नहीं कि उसको भागना है। भागना किसको है? सामने वाले को। उसका खुद पे भरोसा उसको राजा बनाता है। ऐसे ही आप सब भी अलग अलग जगहों से आए होंगे, ठीक है। कई लोगों को लगता होगा मैं अंग्रेजी माध्यम में नहीं पढ़ा, कुछ लोगों को लगता होगा आई एम नॉट पास्ड आईआईटी, कुछ को लगता होगा मैं आई एम नॉट दैट गुड एज somebody big। होता है ऐसा? somebody is not knowing that much good English। होता है ऐसा? पर राजा बनने के लिए केवल एक चीज चाहिए, वो क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप सब राजा बनने को राजी हैं, आर यू ऑल रेडी टू बिकम किंग? सो ओनली वन थिंग यू रिक्वायर्ड, यू डोंट रिक्वायर्ड एनी बिग क्वालिफिकेशन, एनी बिग इंस्टीट्यूशंस, नथिंग। इफ यू वांट टू बिकम किंग, आपको केवल खुद पर भरोसा और पैशन होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट रिक्वायर्ड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन मैंने आप सबसे पूछ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, वापस जाओ भाई। डॉलर दिखा रहे हैं, ये डॉलर दिखा रहे हैं, बदल दूंगा, रुपया कर दूंगा। थोड़ा 82 रुपए था ना, इसलिए मैंने दिखा दिया।
ज़्यादा पैसे दिखते हैं, क्योंकि वो अपन ये बच्चे जो है ना आजकल सर पैसे है ना बिलियन मिलियन में डॉलर में ही मांगते हैं सर, इसलिए। चलिए सर, अगली बार से इसका फोटो बदल देंगे। नेक्स्ट देखिए, ये लोग भी बहुत पैसे वाले लोग हैं। सुंदर पिचई, सत्य नडेला, सब नाम जानते हैं इनके, लेकिन इनके ओनर कोई और है। ध्यान दीजिएगा, 2000 करोड़ की तनख्वाह वाले सत्य नडेला साहब को भी तनख्वाह देने वाला कोई और व्यक्ति है। एम आई राइट? तो डिसाइड आपको करना है कि आपको इस तरफ रहना है, सुंदर पिचई या सत्य नडेला को जॉब देने वाला व्यक्ति बनना है आपको। चॉइस आपकी है, ठीक है। पैसे बनने वाले बिलियनर ट्रिलियनर इधर वाले लोग, ठीक है। सो आज अपनी बातचीत किस पे होगी? अमीर बनने का सबसे आसान तरीका एंटरप्रेन्योरशिप है, और बज़वर्ड क्या है? स्टार्टअप्स, ठीक है। अपन बात करेंगे स्टार्टअप्स पे, स्टार्टअप की डेफिनेशंस पर, स्टार्टअप होते क्या हैं, और आप लोग सब कैसे इसको जर्नी को शुरू कर सकते हैं, जितने लोग भी इस जर्नी में आना चाहते हैं, ठीक है। मैं आपको ये भी डिफरेंस बतलाऊंगा कि स्टार्टअप्स और नॉर्मल एंटरप्रेन्योर में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोग उस डेफिनेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार मेरे पास लोग आते हैं और मुझसे कहते हैं, मैं कल ही एक सज्जन से मिला, मैं एक दूरदर्शन चैनल पर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर गया था, तो वहाँ पर एक सज्जन आया, उन्होंने बोला मैं एक अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ। तो वो बेसिकली अपना बिजनेस शुरू कर रहे थे, वो स्टार्टअप नहीं, वो बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। वो स्टार्टअप, तो हम ये भी समझेंगे कि स्टार्टअप किसको कहते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप किसको कहते हैं, राइट। सो वी मूव अहेड। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये 3 वर्ड आप लोग अपने पास लिख लीजिए, ये 3 वर्ड आप लोग अपने पास बिल्कुल लिख लीजिए। जितने भी स्टार्टअप, जो स्टार्टअप कहलाते हैं, उसमें ये 3 चीजें होना जरूरी है। कौन सी 3 चीजें होनी जरूरी है? ये 3, मैं आपको समझाता हूं ये क्या 3 है, ठीक है। ये 3 वर्ड होने जरूरी है। बाकी अगर ये नहीं है तो आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन आप स्टार्टअप नहीं हैं। स्टार्टअप डेफिनेशन के अंतर्गत आप नहीं आते अगर आपके पास ये 3 नहीं। तो सबसे पहले डेफिनेशन में सबसे पहले कोई पढ़ेगा क्या लिखा है सबसे पहले? इनोवेशन। इनोवेशन आपके बिजनेस आइडिया में होना चाहिए। फिर से मैं जाता हूं, इनोवेशन से पहले एक और, ठीक है। हम सबको सपने आते हैं, सपने आते हैं सबको, और किसी को लिखे हुए सपने आते हैं कि चित्र में सपने आते हैं? चित्र में आते हैं, और उसमें से एक आधी सपना सुबह याद रहता है। एम आई राइट? ऐसे ही अपनी लाइफ में भी है। अपन में से हर आदमी को ऐसा एक ड्रीम सा आता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा। ऐसा होता है? हम कहते हैं सपने देखता है आदमी, बहुत अच्छा काम है। तो जो लोग सपने देखते हैं, अगर उस सपनों में, ध्यान से सुनिएगा, सपनों में ऑब्जेक्टिव जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए? ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, तो वो आइडिया हो जाता है। वो क्या हो जाता है? आइडिया हो जाता है। अगर उसमें कोई, उस सपने का कोई उद्देश्य हो, तो वो क्या बन जाता है? आइडिया बन जाता है। तो ऐसे ही लोगों के दिमाग में आइडियाज आते हैं। तो आपके पीढ़ी के पहले 10-15 साल पहले लोग पहले आइडिया पे पैसे लगाते थे। अब वो समय थोड़ा सा बदल गया है, अब हम उसमें थोड़े से और आगे बढ़ गए। अपनी कैपेसिटी पे इतना भरोसा रखिए, इसी हिंदुस्तान में अपन सब रहने वाले हैं, सब लोग विदेश नहीं चले जाएंगे, ठीक है। तो हम यहीं रहेंगे, और लोन पटाना कोई बड़ी बात नहीं होती। टेक दिस फैसिलिटीज व्हेन एवर इट कम्स, राइट। चलिए वापस अपने टॉपिक पे। थैंक यू सर। एंड सो हम इनोवेशन पे थे, ठीक है। पीछे भैया क्या हो गया? ओके, चलिए। सो इनोवेशन, इनोवेशन एक ऐसा वर्ड है जिसको मैक्सिमम लोग बहुत परेशान होते हैं कि ये कैसे आएगा। तो कुछ डिफरेंस मैं बता देता हूं, ठीक है।
इनोवेशन और क्रिएटिविटी में फर्क है। इनोवेशन और क्रिएटिविटी में फर्क है। इस बोतल को छोटा बड़ा कर दिया, इसके ऊपर एक और नल लगा दिया, साथ में ढक्कन रख दिया और ग्लास भी रख दिया, तो ये सब क्रिएटिविटी है। ये सब इनोवेशन जनरली कम्स फ्रॉम प्रोसेसेस। किस में आता है इनोवेशन? प्रोसेसेस। आप इंजीनियर लोग हो तो आपको जल्दी समझ में आएगा। प्रोसेसेस, ध्यान दीजिएगा। टैक्सी सर्विसेज हमेशा से थी, एम आई राइट? टैक्सी हमेशा मिलती थी। ओला ने क्या किया? प्रोसेस को इनोवेट कर दिया, प्रोसेस को इनोवेट कर दिया, और वो बिना टैक्सी खरीदे दुनिया के सबसे बड़े टैक्सी ओनर बन गए। एम आई राइट? सेम हैपेंस विथ ओयो। नो होटल they have owned. What they have done? They have simply innovated the process of booking and availing the facilities. बात समझ में आई आप सबको? जोमेटो को देखा आपने? उसने कोई होटल नहीं खोला, कोई क्लाउड किचन नहीं बनाया, कोई बहुत सारे रेस्टोरेंट नहीं खोले। उसने क्या किया? केवल डिलीवरी शुरू की, घर तक आपके खाना पहुंचे। करेक्ट? सो अंडरस्टैंड, इनोवेशन इज अ प्रोसेस, क्रिएटिविटी इज अ पार्ट ऑफ इट। करेक्ट? तो जब भी आप कुछ आगे सोचेंगे, आइडियाज आएंगे आपके दिमाग में और आप कुछ नया सोचेंगे, तो जरूर सोचिएगा कि जो मैं सोच रहा हूं वो कुछ नया इनोवेट, कुछ नया कर पा रहे हैं। आप इंजीनियरिंग में भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी हैं। हमेशा सोचिएगा, क्योंकि आज की दुनिया में आप लोगों के लिए एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी है बीइंग एन इंजीनियर। आपको मालूम है भारत की जितनी बड़ी कंपनियां हैं, विदेश की भी कंपनियां हैं, मर्सिडीज हो या कोई भी हो, वो सब आप जैसे यंगस्टर्स को, थैंक्स सर, आप जैसे जितने भी यंगस्टर्स हैं उन सबको इंक्यूबेशन में इंक्यूबेट करती हैं। काहे के लिए करती हैं मालूम है? कि उनकी प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व करें। I represent a fund called Venture Catalyst. We do it globally. अभी मर्सिडीज की एक इंजन की प्रॉब्लम को कानपुर आईआईटी के बच्चों ने सॉल्व किया। क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनियां कुछ भी इनोवेट करना चाहती हैं, वो कहती है यंगस्टर्स के पास चलो, क्योंकि आप लोग टेक्नोलॉजी में हमारी पीढ़ी से बेहतर है। आप सबके घर में आपके छोटे भाई बहन या आप खुद अपने दादा दादी को मोबाइल चलाना सिखाते हो कि नहीं? सब सिखाते हैं पक्का? दादी आपसे नहीं कहती बेटा देखो ये क्या हो गया? उनको तो साउंड बढ़ाते भी नहीं आता, और आदमी क्या कहता है, अरे दादी क्या है यार, तुमको इतनी, फेसबुक ही नहीं खोल रहा तुमसे। होता है ऐसा? तो सेम हैपेंस इन दिस वर्ल्ड ऑल्सो। हम सारे लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, हम सारे लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आप ही टेक्नोलॉजी जानते हैं, आप ही जानेंगे, आप ही मेटावर्स देखेंगे, आप ही AR देखेंगे, आप ही VR देखेंगे। एम आई राइट? सो ये दुनिया आपकी है। दुनिया किसकी है? आपकी है। लैंडिंग आपके लिए सब लोगों ने तैयार करके रखी। आपको केवल उस नए विचार को लाना है जो इनोवेटिव प्रोसेस में कुछ बदलाव ला सके। उसके लिए भी बहुत आसान तरीका है। कुछ लोग मुझसे पूछते सर ये हमारे दिमाग में तो आता ही नहीं, नया कैसे आए? वो भी आसान है। हमारा भारत में एक बड़ी अच्छी चीज है, हमारा देश एंटरप्रेन्योर्स का देश कहलाता है, क्योंकि हम प्रॉब्लम से भरे हुए हैं। एम आई राइट और नॉट? हम प्रॉब्लम से भरे हुए हैं। तो आपको केवल एक काम करना है, एक बड़ी सी प्रॉब्लम ढूंढनी है। एक बड़ी सी, और बड़ी सी प्रॉब्लम कैसे ढूंढनी है? ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो यहां बैठे 50% से ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम है, वो बड़ी प्रॉब्लम। जब जोमेटो को लगा कि भाई लोग रेस्टोरेंट में बाहर वेटिंग करते करते थक जाते हैं और उनको दाल मनोहर की पसंद है, पकोड़ा वहां का पसंद है और मिठाई वहां की पसंद है, तो उसने क्या किया? आप घर बैठ के खा लीजिए, मैं पहुंचा देता हूं। ऐसे ही किया। So you have to just find out the problem and it will become innovation. तो आपको क्या ढूंढना है? प्रॉब्लम ढूंढनी है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढना है,
जब भी आप किसी के सामने प्रेजेंटेशन करेंगे आपको केवल एक ही चीज बतानी है, आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और आपने उसका सॉल्यूशन क्या ढूंढा है। आपको मालूम है, अपन अगर ट्रेन में भी जाते हैं तो अपने यहाँ ज्ञानी लोग बहुत हैं, ज्ञानी है ना बहुत। अपने यहाँ कैसे होता है कि लोग ज्ञान बहुत देते हैं और हर आदमी को हर चीज का सॉल्यूशन पता होता है, एम आई राइट। और लोग भगवत गीता से लेकर रामायण से लेकर सब तरह की आपको ज्ञान, और व्हाट्सएप है ही अपने पास ज्ञान की फैक्ट्री, ज्ञान भरपूर देते हैं, ठीक है। पर इस ज्ञान को मुश्किल से 1% लोग इंप्लीमेंट कर पाते हैं, राइट। इस सॉल्यूशन को केवल 1 से 5% लोग इंप्लीमेंट कर पाते हैं और वही लोग एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। So if you become an entrepreneur at a startup, you are among 5 to 10% people of the world. इसीलिए दुनिया में हर आदमी, चाहे वो नौकरी करता हो, कुछ भी करता हो, कहीं ना कहीं वो मुझसे आके कहता है सर अपना कुछ शुरू करना है। Am I right or not? क्योंकि हर के दिमाग में होता है कि ये कुछ सुपीरियर जगह है, अपना कुछ शुरू करना है। Am I right? और यंग बच्चे भी आजकल हमेशा कहते हैं अपना कुछ शुरू करना है। सो यू आर इन दैट वर्ल्ड जहां पर आप सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले, प्रॉब्लम ढूंढिए और उसका प्रोबेबल सोल्यूशन ढूंढिए। दूसरा, उसमें स्केलेबिलिटी बहुत होनी चाहिए। आप जो भी सोल्यूशन ढूंढते हैं उस इनोवेशन का, उसमें स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। स्केलेबिलिटी को भी मैं समझाता हूं, इसीलिए आपके यहाँ आईटी सब जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आप सोच के देखो, अगर ओला कोई ऐसा मॉडल बनाता कि मैं हर शहर में 500 टैक्सियां खरीदूंगा पहले और फिर उसमें सॉफ्टवेयर लगाऊंगा और फिर टैक्सियां चलेंगी, तो सक्सेसफुल होता क्या? उसने क्या किया, जो टैक्सी ओनर थे उन्हीं को ओला में शामिल कर लिया और वो शहर के शहर जोड़ता चला गया। एम आई राइट? बिग स्केलेबिलिटी। इन्वेस्टर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन दोज प्रोजेक्ट्स जिसमें कैपिटल ज्यादा लगता हो और वो धीरे धीरे बढ़ती हो। वो बोलता भाई जल्दी बढ़े, स्केलेबल है कि नहीं आपका धंधा, ठीक है। तो सेकंड इज स्केलेबिलिटी एंड थर्ड वन इज सस्टेनेबिलिटी। हम ये चाहते हैं कि आप जो भी विचार लाएं, जो भी बिजनेस आइडिया खड़ा करें, उसको ग्राहक खरीदता है कि नहीं। उसको हमारी लैंग्वेज में, मेरे साथ रिया हैं और शुभम है, ये दोनों एक्सपर्ट हैं स्टार्टअप में, ये उसको कहते हैं आपके इसमें ट्रैक्शन है कि नहीं। आपने वर्ड सुना होगा, लोग कहते हैं ट्रैक्शन। कितने लोगों ने वो देखा है शार्क टैंक? ओह, सबने देखा है। तो वो शार्क टैंक में जो ट्रैक्शन वर्ड है वो क्या है कि आपका बिजनेस सस्टेनेबल है कि नहीं, कोई खरीदता भी है कि नहीं उसको, कि केवल सोचते ही सोचते रहते हो। आपका माल बिक रहा है कि नहीं, आपका धंधा चल रहा है कि नहीं, वो ये जानना चाहते। और अब सरकार ने इसमें चौथी चीज और जोड़ दी है और वो है एम्प्लॉयबिलिटी। सरकार कहती है स्टार्टअप की एक जिम्मेदारी है कि वो अपने साथियों को जॉब दे, एम्प्लॉयमेंट दे, क्योंकि भारत में एम्प्लॉयमेंट एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं जब एक अभी किसी चैनल पे था तो मेरे से लोगों ने पूछा, तो मैंने कहा एम्प्लॉयमेंट देना, स्टार्टअप होना, एंटरप्रेन्योर होना आज की डेट में उतनी बड़ी देशभक्ति है जितनी बड़ी सेना के जवानों की है। उतनी ही बड़ी देशभक्ति है जितने जवान खड़े ना वहां पर, उनकी जितनी पेट्रियोटिज्म है उतनी ही एंटरप्रेन्योर की भी है, क्योंकि आप अपने साथ के लोगों को एम्प्लॉयबल करते हैं। आप अपने साथ के लोगों को एम्प्लॉयबल करते हैं। नेक्स्ट, अरे मेरे को ही करना है, ठीक है। आपके इस इकोसिस्टम के जो स्टेक होल्डर्स हैं मैं वो आपको बतला दूं। गवर्नमेंट तो है ही, सरकार आपकी बहुत बड़ी स्टार्टअप दुनिया की स्टेक होल्डर है। मध्य प्रदेश शासन से लेकर, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश शासन की बहुत सारी स्टार्टअप पॉलिसी योजनाएं आप स्टार्टअप्स के लिए। 2022 की मई 13 को स्टार्टअप पॉलिसी मध्य प्रदेश की भी लॉन्च हुई है। सो आई एम वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट, ऑफ पॉलिसी मेकिंग। सो वो 2023-22 में लॉन्च हुई है। यंगस्टर्स के लिए बहुत सारे उसमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं। दूसरा स्टेक होल्डर इन्वेस्टर होता है, दूसरा स्टेक होल्डर इन्वेस्टर होता है, ठीक है। पीछे कुछ कर रहे हैं क्या आप लोग? पीछे कुछ कर रहे हैं, कुछ बट रहा है पीछे जो सज्जन बैठे हैं जितने,
सो जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं उसमें एक इन्वेस्टर इंपॉर्टेंट होता है। इन्वेस्टर सबको पता है ये वर्ड? तो सीड इन्वेस्टर होते हैं, आपके पास एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, आपके पास वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, आपके पास प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते हैं, ये इन्वेस्टर्स होते हैं। उसके बाद अपने पास इंक्यूबेशन होता है। आपके आरजीपीवी में भी एक इंक्यूबेशन सेंटर है, मालूम है आप सबको? आपके यहाँ भी इंक्यूबेशन सेंटर चालू हुआ है। इंक्यूबेशन मतलब जहां पर आप लोग सारे लोग अगर कोई बिजनेस आइडिया को लेकर आते हैं, करेक्ट, आप अपने बिजनेस आइडिया को लेकर आते हैं तो उसको डेवलप करने की जिम्मेदारी आपके साथ इंक्यूबेशन की होती है, करेक्ट। वो आपके साथ हैंड होल्डिंग करते हैं, आपके साथ क्या करते हैं? और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप किसी भी इन्वेस्टर के पास, गवर्नमेंट के पास फंड्स लेने जाएंगे तो वो पूछेगा आप इंक्यूबेटेड कहां हो, आप इंक्यूबेटेड कहां पर। सो इट्स वेरी मैंडेटरी, जब आप किसी स्टार्टअप को शुरू करते हैं तो आप किसी न किसी इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़ते हैं। आपके आरजीपीवी में इंक्यूबेशन सेंटर चालू होने वाला है। सो यू आर अगेन अ लकी बैच, जो आपके इंक्यूबेशन सेंटर चालू होगा और आप सब वहां पर होंगे, जिसके दिमाग में वो आइडिया होगा, और जो लोग सेलेक्ट होंगे वो लोग सब इंक्यूबेशन का हिस्सा हो सकते हैं। तो भारत में बहुत सारे प्रकार के इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, भोपाल में भी बहुत सारे हैं, हर जगह पर। तो आप उन इंक्यूबेशन सेंटर्स की भी मदद ले सकते हैं। वो आपको सारी सुविधाएं देते हैं, आपकी कंपनी फॉर्मेशन से लेके, इन्वेस्टर ढूंढने से लेकर, आपकी लीगैलिटी को कंप्लीट करने के लिए से लेकर, आपकी अकाउंटिंग प्रोसेसेस को कराने के लिए। क्योंकि ज़्यादातर बिजनेसमैन बिजनेस तो शुरू कर देते हैं और उन्हें यही नहीं पता होता अकाउंटिंग कैसे होगी, एक्सपेंसेस कैसे दिखाए जाएंगे, बैलेंस शीट कैसे बनेगी। एम आई राइट? तो ये सारी चीज़ें आपको इंक्यूबेशन सेंटर पर एक जगह मिलती हैं, करेक्ट। उसके बाद स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं इन सिस्टम में, और फैसिलिटेटर्स होते हैं। फैसिलिटेटर्स कौन कौन होते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, बैंक्स, और ऐसे बहुत सारे लोग जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद। एक वर्ड और रह गया, वो है मेंटर। मेंटर क्या होता है? जो कि आपका जीपीआरएस होता है। मोबाइल में जैसे जीपीआरएस होता है ना, मैप पे डालो तो वो आपको रास्ता बताता है, ऐसे ही आपके जीवन में एक मेंटर भी होता है। जब वो स्टार्टअप के साथ जुड़ता है, वो मेंटर आपके साथ क्या करता है? क्योंकि वो उस जर्नी को जी चुका होता है, तो वो आपको क्या बतलाता है कि ये रास्ता सही चल रहा है, इस रास्ते में ये खड्डे आएंगे, ये ऊंच नीच होगी। सो ही विल गाइड यू। सो जब भी आप स्टार्टअप बने या कोई नया आइडिया शुरू करें तो ध्यान रखिएगा, मेंटर आपके साथ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। आपके शिक्षक हो सकते हैं, बिजनेस का कोई व्यक्ति हो सकता है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट हो सकता है, पर आपके साथ एक मेंटर का होना ज़रूरी है। आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप लोग कुछ भी नया शुरू करते हैं तो किसी न किसी व्यक्ति को अपना मेंटर ज़रूर बनाइए, ताकि बाद में आपको बहुत सारी चीज़ों से वो आपको बाहर निकाल पाएगा जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने जाएंगे। ठीक है? इन सब के नाम आपने सुने? तो ये सारे स्टार्टअप है, इन्हीं के नाम रोज आप सुनते हैं और बड़ा खुश होते हैं। ये सब भोपाल के स्टार्टअप्स हैं, आपको मालूम है? क्योंकि आप मध्य प्रदेश से हैं तो ये मध्य प्रदेश के स्टार्टअप है। ये सब मेरे ही, बहुत से तो मेरे ही हैं, लेकिन अपॉइंटी भोपाल का बहुत पावरफुल है। अगर आप लोग में से कोई अपॉइंटी को जानता हो, appointee.com देखिएगा। बहुत ही भोपाल का निमिष, बहुत ही शानदार उन्होंने बिजनेस क्रिएट किया है। वीविन, अभी मैंने बतलाया, जैसा अभी वो सर कह रहे थे ना, फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट लड़का, 100 करोड़ की वैल्यूएशन, वो वीविन है, V360 है। एनकिंग इंटरनेशनल, बड़ा मजेदार है, मध्य प्रदेश, भोपाल से ही पढ़ा है, ओरिएंटल, LNCT की ओरिएंटल, शायद LNCT से या ओरिएंटल से पास आउट है। तो ये जो कंपनी है ये कार्बन क्रेडिट्स में काम करती है। और आपको मालूम है मनीष जपकारा जो इसका ओनर है, ध्यान से सुनिएगा, उस व्यक्ति का मध्य प्रदेश में आज की डेट में पहले 3 अमीरों में आता है वो। और देखते देखते, आप जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में था, मेरे पास मेंटरिंग के लिए भी आया, लेकिन आज की डेट में ही इज अ ब्रांड। एनकिंग इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेम इन कार्बन क्रेडिट्स। और मनीष जपकारा साहब, उनका शेयर, अगर जितने लोग शेयर समझते हो थोड़ा बहुत, उनका शेयर 109 रुपए का शेयर एक साल में 12,000 रुपए हो गया। कितना हो गया? 12,000 रुपए हो गया। कितना गुना हो गया? 109 रुपए का शेयर 12,000 रुपए का हो गया। तो मनीष जपकारा साहब है जिनकी वो कंपनी है।
फिजिक्योर फिर से भोपाल में मेरा मेंटी है, ही इज बेसिकली इनटू फिजियोथेरेपी एंड ऑल दोज थिंग्स। सो ऐसे बहुत सारे विचार, इनको जानते हैं? हम दोनों एक कंपनी में, यंगो वेटर करके कंपनी इंदौर की, हम दोनों उसमें एडवाइजर हैं। ये भी मैं परसों भी इनके साथ था 3 दिन पहले। एंड तो इसलिए कोई पढ़ाई, कोई ये सोचे कि मैं इंजीनियर थोड़ा कम नंबरों से बना, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, स्टार्टअप बनने के लिए कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती। आप में से कोई भी ये काम कर सकता है, ठीक है? केवल क्या आना चाहिए? इनोवेटिव आइडिया आना चाहिए, बाकी सब कुछ तो उपलब्ध है। आपके पास केवल एक ही काम करना है आपको, और वो क्या करना है? नया सोचना है। नया, आज से 1 महीने पहले मैं इसी हॉल में था और नए स्टार्टअप्स को सुन रहा था जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क से थे। वीसी साहब भी थे, और वो 15 स्टार्टअप्स ने बहुत ही जबरदस्त नए प्रोडक्ट एग्रीटेक में लाए, एग्रीकल्चर फील्ड में लाए। हर क्षेत्र में आप सोच सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में ऐसा जरूरी नहीं है कि, और इंजीनियर तो सबसे खास आदमी होता है, वो किसी भी क्षेत्र में सोच सकता है। वो हेल्थ में सोच सकता है, वो मैकेनिकल में सोच सकता है, वो एग्रीकल्चर में सोच सकता है, हर क्षेत्र में सोच सकता है। एडुटेक में, बायजूस एडुटेक है। सो टेक्नोलॉजी इज सपोर्टिंग एवरीवेयर। यू नीड नॉट टू गो फॉर एनीथिंग एंड यू कैन गो फॉर इट। अब मेरे से बहुत सारे लोग पूछेंगे इसको शुरू कैसे करना, इसको शुरू कैसे करना, करेक्ट? लगता है ऐसा? सो सबसे पहले अपने को क्या करना है? पीछे जाके कैसे जाएगा? पीछे ऐसे जाएगा, ठीक है। सो स्टार्टअप शुरू होता है आइडिया के साथ। सबको समझ में आ रहा है यहां से वहां तक? सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको आइडियाज को डेवलप करना होगा। चाहे आप किसी भी उम्र के व्यक्ति हो, सोचिए। आपके इंक्यूबेशन शुरू हो रहा है, आपके प्रोफेसर्स यहां पर हैं, या तो एक अपने ग्रुप बना लीजिए। आपके यहाँ इनोवेशन काउंसिल भी है आपके आरजीपीवी में। तो आपके यहाँ पर जो भी कुछ आप सोचते हैं उनको आप संपर्क करिए, मुझे संपर्क करिए, मेरे जैसे बहुत सारे और भी लोग हैं जो इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। जब भी कुछ नया सोचते हैं, एक बार उसको दबाइए मत कि मैं मूर्खों जैसा तो नहीं सोच रहा। ऐसा लगता है ना कई बार कि यार अपन पता नहीं पापा डांटेंगे, बोले पता नहीं क्या सोचता रहता है। पर ऐसा सोचें तो उसको ईमेल पे लिखें, उसको थोड़ा सा लिखिए, उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज होनी चाहिए। मैंने बोला ना, ड्रीम के साथ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, प्रॉब्लम होना चाहिए। तो लिखिए उसको, और फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन लिखिए कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं। आप कुछ भी सोचिए, मंगल ज्ञान पे जाने का सोचिए, चंद्रमा पे जाने का सोचिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको सोचिए और नया सोचिए। कोशिश करिए कि इनोवेटिव सोचिए, क्रिएटिव नहीं, इनोवेटिव। प्रोडक्ट भी सोचिए तो इनोवेटिव सोचिए। सोचिए अपनी लाइफस्टाइल। आप में से कितने लोग भोपाल से छोटे शहरों में, जो भोपाल से बाहर के हैं? अरे बहुत सारे लोग। तो अपने आप छोटे शहरों से भी हैं, जिनके बी टाउन से हैं कुछ लोग। हमारी प्रॉब्लम्स जो भोपाल से छोटे शहर हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो भोपाल से छोटे शहरों से हैं। आप देखिएगा उनके शहरों में उनकी प्रॉब्लम्स होंगी। ड्रोन कितने लोग चलाते हैं जानते हैं? ड्रोन बहुत सारे लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी पे भी आज की डेट पे काम करते हैं। आपको मालूम है यूरिया पहले ऐसा फेंका जाता था हाथ से, आजकल यूरिया कैसा हो गया है? यूरिया आजकल कैप्सूल में आने लगा है, मालूम है? यूरिया आजकल कैप्सूल में आने लगा है, और उसको ड्रोन से डाल देते हैं क्योंकि लेबर नहीं मिलती। देखो इनोवेशन है कि नहीं? यूरिया पहले भी था, उसको क्या किया उन्होंने? कैप्सूल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि लेबर नहीं मिलती गांव में। तो ड्रोन उस टैबलेट को सब जगह, इनोवेशन है, प्रोसेस में इनोवेशन है, ठीक है। ऐसा आप बहुत सारा सोचने का प्रयास करिए। एक बार जब वो हो जाए तो उसके बाद अपने टीचर्स के पास आइए, अपने इनोवेशन सेल में आइए, हमारे जैसे जितने साथी उनके साथ आइए और अपना आइडिया को डिस्कस करिए। हो सकता है वो एक बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट हो जाए। यू कैन इंक्यूबेट देन,
और उसके बाद फिर जर्नी चालू हो जाएगी। मेरे साथ रिया भी बैठी हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं जो आपका पीपीटी बनाएंगे, जो आपकी पिच डेक बनाएंगे, आपके आइडिया को बिजनेस का स्वरूप देंगे, बिजनेस का स्वरूप देंगे कि वो एक बिजनेस के रूप में डेवलप हो जाए। एंड वी विल टेक यू टू दिस जर्नी ऑफ पिचिंग टू द इन्वेस्टर्स, मेकिंग टर्म शीट्स एंड जो भी बड़े बड़े वर्ड्स आप शार्क टैंक में सुनते थे, वो सारे आपके साथ भी हो सकते हैं। पर शुरुआत कहां से होगी? आइडिया। एक आइडिया बदल दे आपकी दुनिया, एक आइडिया बदल सकता है आपकी दुनिया 100%। आपने भोपाल से जितने लोग होंगे उनमें उन्होंने कबाड़ी वाले का नाम सुना होगा, कबाड़ीवाला.com सुना आपने? तो अनुराग असाटी 7-8 साल पहले कॉलेज में पढ़ता था, 3rd ईयर का स्टूडेंट था इंजीनियरिंग का, और उसको लगा कि ये जो कबाड़ी वाले दिन भर घूमते रहते हैं, इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए। ऐसे ही बैठे बैठे, और कबाड़ीवाला.com आज इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस ओनर है। आपसे 4-5 साल बड़ा होगा अनुराग असाटी, फोर्ब्स 30 में आया। ऐसे ही एक उमंग श्रीधर करके लड़की इस शहर में, शी इज़ फ्रॉम दमोह के पास की एक जगह है, वहाँ से है। खादी जी करके उसका ब्रांड है, वो भी फोर्ब्स 30 में गई अभी, आप उनसे मिलिएगा। ये सब भोपाल के बच्चे हैं एंड दे आर डूइंग ग्रेट। कुछ ज़्यादा नहीं सोचा उन्होंने, थोड़ा सा नया सोचा, और वो एक बहुत बड़ा V360 जब हमारे पास आया, वो लड़का 21 साल का रणो गुप्ता, उनने क्या सोचा, हमारी कंपनी, मैं जिस कंपनी में डायरेक्टर हूँ वीविन, हमारे पास 3-4 हज़ार एम्प्लॉई हैं, तो मैं उसमें डायरेक्टर था हूँ। तो उसने ऐसे ही पापा से कहा कि पापा ये कोविड हो गया है, तो इनका अपन ट्रैकिंग कैसे करेंगे, ये लोग घर पे कैसे काम करते हैं, हाउ वी नो दैट दे आर वर्किंग एट देयर होम, कि ऐसे ही बैठे हैं फालतू। एंड दैट्स हाउ V360 स्टार्टेड। इट्स ट्रैक द परफॉर्मेंसेस, वर्क, एवरीथिंग इन वर्क फ्रॉम होम में जितने लोग, और आज की डेट में 2-3 हज़ार कॉर्पोरेट अक्रॉस ग्लोब V360 के कस्टमर। तो दैट्स हाउ इट मूव्स। आपको केवल क्या सोचना है? आइडिया, नया सोचना है, कुछ भी नया सोचिए, और वो उसके बाद ये पूरा इकोसिस्टम आपकी मदद करने के लिए आ जाएगा, पूरा इकोसिस्टम आपकी मदद के लिए आ जाएगा। और भारत इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा 3रे नंबर का स्टार्टअप कंट्री है, एम आई राइट? 3रे नंबर का। 106 तो हमारे पास यूनिकॉर्न है, आपको पता है 106 यूनिकॉर्न है? वी हैव 106 यूनिकॉर्न्स। हमारे पास इतने सारे लोग, दुनिया भर में इतना सारा पैसा, देखिए आप, इतने तो मैं वर्ड्स भी नहीं पढ़ सकता, आप देखो तो सब में मिलियन ट्रिलियन ही लिखा हुआ है, एंड यू आर द पार्ट ऑफ इट। आप सब इसका हिस्सा होंगे। 2025 में आप लोग शायद जब पहुंचेंगे तो ये सब हो रहा होगा। आप सब अमीर बनने वाले हैं। अमीर बनना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, दुनिया में सबसे आसान काम पैसा कमाना है। दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? पैसा कमाना है, सबसे आसान काम है। बाकी सब बहुत कठिन है, पैसा कमाना सबसे आसान काम है, इस बात को मान लीजिए। ये कुछ सुविधाएं जो आपको सरकार देती है जब आप स्टार्टअप शुरू करते हैं, ठीक है? अगर आप स्टार्टअप हैं तो आपको टेंडर में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगता है, आप सीधे गवर्नमेंट के काम ले सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट नहीं लगता है। आपको इसके लिए भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर रजिस्टर कराना होता है अपने स्टार्टअप को। फिर से हमारी जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसमें एक इंक्यूबेटर वर्ड होता है, आप किसके साथ इंक्यूबेटेड, ठीक है? आप मुझे भी ढूंढिएगा, स्टार्टअप इंडिया में मैं भी मेंटर इंक्यूबेटर दोनों हूं, ठीक है? तो आपको सरकार कहती है कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोसेस हैं, उसमें आप स्टार्टअप से बच सकते हैं। गवर्नमेंट आपको प्रेफर करती है कोई नया ऑर्डर कराने की। गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप जैसे यंगस्टर्स कुछ नया लेकर आएं, ताकि सरकार की बहुत सारी इश्यूज, पब्लिक सर्विस की बहुत सारी इश्यूज सॉल्व हो सके। आपको मालूम है, जितने अपने यहाँ कचरा उठाने वाले जो ऑटोमेटेड चीज़ें हैं और वो जो दिन भर गाना गाते रहते, वो सब स्टार्टअप नहीं किया है भोपाल शहर में। स्मार्ट सिटी में जितने स्टार्टअप हैं, दे वर्कड विथ मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे थॉट प्रोसेस के साथ, कि वो किस तरह से इन सब चीज़ों को करेंगे, राइट? सो यू कैन ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ इट। इसके अलावा ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, सब पर रिबेट है। स्टार्टअप्स को सब कुछ ऑफ है। और सबसे बड़ा बेनिफिट, इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन है। अगर आप
एक लेवल का स्टार्टअप बनाते हैं तो भारत सरकार आपसे टैक्स नहीं लेती, जो किसी भी व्यवसायी को, किसी भी एंटरप्रेन्योर को उपलब्ध नहीं है। हम सबको अपने अपनी इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। स्टार्टअप ही वो कम्युनिटी है जिसको भारत सरकार 3 वर्षों के लिए टैक्स एग्जेम्पशन देती है, ठीक है। सो लॉट ऑफ थिंग्स दे आर अट्रैक्टिव चीजें जो आपको बहुत अट्रैक्टिव बना सकती हैं आपके इस कंपोजिशन को। सोचना क्या है? आइडिया। तो आप जब यहाँ से घर जाएं, मुझसे मिलके जाएं, तो याद रखिएगा जब भी कुछ नया सोचें, जहां भी कोई प्रॉब्लम देखें, बड़ी सी स्टेटमेंट प्रॉब्लम की देखें, तो सोचिए उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। फिर से सोचिएगा, सोल्यूशन बताने वाले बहुत लोग हैं। आपकी मैडम भी सोल्यूशन दे सकती है, आपके पापा भी सोल्यूशन दे सकते हैं, आपका भाई भी सोल्यूशन दे सकता है, और दुनिया जहान के ज्ञानी लोग सोल्यूशन दे सकते हैं, पर करने वाला एंटरप्रेन्योर होता है। फिर से याद रखिएगा, डिक्शनरी में एंटरप्रेन्योर का मीनिंग साहसी होता है, रिस्क टेकर। जिसमें हिम्मत है वो इस दुनिया में उतरता है। इसलिए मैंने आपको शेर की कहानी सुनाई कि शेर बनना है अगर आपको, तो वो हिम्मत आपको डेवलप करनी पड़ेगी, अपने पे भरोसा रखना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, वो ठीक है। और थोड़ी सी गलत सलाह भी दे देता हूं, मैडम लोग डांटेंगी मुझे, कि बहुत ज्यादा पापा मम्मी की नहीं सुनने, क्योंकि जब आप पापा मम्मी की ज्यादा सुनते हो ना, तो वो ये चाहते हैं कि बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा पास में ही रहे, ज्यादा रिस्क न उठाए, नौकरी कर ले, सुरक्षित कुछ हो जाए, सरकारी जॉब मिल जाए तो होती अच्छी बात। डोंट डू दैट। इफ यू वांट टू बिग रिच, यू हैव टू बी एंटरप्रेन्योर, राइट। अगर आप लोगों को एम्प्लॉयबल करना चाहते हैं, पेट्रियोटिज्म करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, यू हैव टू बी एन स्टार्टअप, जो कि एक नया बज़वर्ड है। एंटरप्रेन्योर तो सब बनते हैं। तो जितने लोग बिजनेस चालू करते हैं, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू करते हैं, बिल्डर बनते हैं, ऐसा नहीं कि वो एंटरप्रेन्योर नहीं, वो सारे एंटरप्रेन्योर हैं। स्टार्टअप एक स्पेशल डेफिनेशन है, इसलिए मैंने आज आप लोगों को बताया, क्योंकि आप उस एज ग्रुप के हैं कि स्टार्टअप बनने के लिए आपको केवल अच्छा सोचना है, नया सोचना है, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी, राइट। ये कुछ मिथ्स हैं जो जनरली लोग मेरे पास आते हैं तब पूछते हैं, और वो सबसे बड़ा मिथ मालूम है, सबसे बड़ा पहला है, मैक्सिमम लोग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। एम आई राइट? लेकिन याद रखिएगा, पैसे बहुत ज्यादा हैं, पैसे देने वाले लोग ज्यादा हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मेरे पास इन्वेस्टर ही इन्वेस्टर हैं जो मुझसे रोज आके कहते हैं, प्रदीप भाई कोई आइडिया दिलवा दो यार, पैसे लगाने, कोई नया व्यक्ति दिलवा दो यार, पैसे लगाने। वी इंडिया एंड वर्ल्ड इज फिल्ड विथ मनी, टन्स ऑफ मनी। अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो कुछ गड़बड़ आपके आइडिया में है, या तो आपके पिच में है, या फिर आपके प्रोसेस में है। अगर ये सब सही है तो पैसा 100% है। Am I right? Money is 100%. Money is having no, मैंने आपको कोई कमी नहीं है, उसकी कोई कमी नहीं है स्टार्टअप्स के लिए। अपने को अच्छा सोचना है, आप में ताकत होनी चाहिए, शेयर आपने को बनना है, पैसे की कोई कमी नहीं। मैंने देखा ना, अर्णव गुप्ता के केस में 1 साल पहले स्टार्ट हुआ, दिवाली मिलने भी आए थे तो बोले मेरी कंपनी का वैल्यूएशन 100 करोड़ है, 4 करोड़ मिल चुके हैं, 10 करोड़ और मिलने वाले हैं। आई अमेज्ड कि 22 साल का व्यक्ति मुझसे 100 करोड़ की कंपनी की बात कर रहा है, आपके ही शहर का, आपके यहीं पड़ा हुआ। एंड दिस ऑल कैन हैपन, राइट। सो मनी इज नॉट ए प्रॉब्लम विथ स्टार्टअप। आपको केवल आइडिया सोचना है, पैसे बाद में आ जाएंगे, पैसे लगाने वाले भी बहुत, ठीक है। दूसरा, कई लोगों को लगता है कि ये अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, जब तक कोई ऐसा बड़ा सा अंग्रेजी में बोलना नहीं आए तब तक स्टार्टअप नहीं हो सकता। सो MBA चाय वाले का फोटो वाले इसीलिए दिखाया था। और जितने भी, रितेश अग्रवाल जिसने ओयो चालू किया, आपको मालूम है रितेश अग्रवाल 10th पास नहीं हो पाए थे, है ना, नहीं हो पाए थे, वो 10th पास नहीं हुए थे। ओयो के मालिक रितेश अग्रवाल अभी 27 साल का है, उसने एक आदमी को 40 करोड़ की सैलरी पे रखा है, वो 27 साल की। सो जस्ट थिंक ऑफ इट, ऐसा कुछ भी नहीं कि आपके पास लैंग्वेज बैरियर है, अंग्रेजी नहीं आती, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मान के चलिए, अगर आप पे बेहतर आइडिया है तो बाकी सारी दुनिया आपको सपोर्ट करेगी, सब सिखा देगी आपको, ठीक है। और तीसरा,
लोगों को लगता है बड़े शहरों में ही सारे इनोवेशन होते हैं, लेकिन अब दुनिया फिर बदल रही है। 2004 का बेंगलोर, 2022 का भोपाल। सो टाइम इज हियर। मध्य प्रदेश एंड ऑल ऑफ यू इज हैविंग अ ग्रेट चांस टू ग्रो। वी आर ऑन एन ग्रोथ ट्रैक। ठीक है सर, दौड़ना पड़ता है। हवाई जहाज भी उड़ने से पहले क्या करता है? जमीन पे दौड़ता है। उड़ने से पहले दौड़ना पड़ता है। इसलिए आपके टीचर्स जो आपको दौड़ने के लिए कहेंगे ना, तो उसके लिए बिल्कुल तैयार है ना। कोई भी सीधे नहीं उड़ता, ये चीज जरूर याद रखिएगा। कोई भी व्यक्ति सीधे, हवाई जहाज ऐसे नहीं उड़ जाता। उठता है? नहीं उठता। यू हैव टू रन ऑन ग्राउंड टू फ्लाई। तो सबसे पहले अपने कॉलेजेस में जो कुछ आप कर रहे हैं उसमें बने रहिए, दौड़ना जारी रखिए, तब उड़ेंगे। तो आइडियाज को जनरेट करने के लिए और उसको दौड़ने के लिए जो ट्रैक चाहिए वो आपका कॉलेज है, आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे बने रहिए। बट आने वाला समय आप लोगों का, मेट्रो सिटी से ज्यादा सारे इन्वेस्टर, मुझे याद नहीं पड़ रहा ऐसा कौन सा इन्वेस्टर है जो भोपाल इंदौर आने में इंटरेस्टेड नहीं है। सारे इन्वेस्टर इंदौर और भोपाल के चक्कर लगा रहे हैं। आई माई सेल्फ हैव डन last 10 or 12 events in last 1 year for investors only, and they are all crazy। भाई साहब किसी को मिलवा दो। फिर से 28 तारीख को एक इवेंट है, उसमें भी अहमदाबाद से लोग आ रहे हैं, सूरत से आ रहे हैं, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट आपके शहर के इन स्टार्टअप से मिलवा दीजिए पैसा लगाना। सी पीपल आर आस्किंग, एंड एवरी मंथ देयर इज अ प्रोग्राम वेयर इन्वेस्टर आर लुकिंग फॉर स्टार्टअप्स। सो आप इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपको पैसे की वो रहेगी। This is me. You can follow me on Instagram, LinkedIn, and everywhere. And Talk Vision is our corporate channel. Kahani Aapki is one more channel which I run. And there I take interviews of successful startups and entrepreneurs. So आप लोग भी उसमें आने वाले समय में आएंगे, ठीक है? Thank you again for giving me this patient hearing. And मैंने ये 20 मिनट इसलिए कम रखे हैं क्योंकि आपसे क्वेश्चन आंसर मैडम ने मुझे बतलाया था, बच्चे बहुत सारा पूछते हैं। तो आई एम रेडी फॉर दैट कि आप में से जो भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में मुझसे पूछ सकते हैं। आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ, वो आप पता कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी मेरा नाम प्रदीप करम्बेलकर है, आप मेरे को गूगल करेंगे तो भी मैं मिल जाऊँगा, ठीक है? मेरा सरनेम थोड़ा विचित्र सा है ना, तो जल्दी मिल जाता हूँ। सो प्रदीप करम्बेलकर मेरा नाम है और उसको आप गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है? इंस्टा पे भी मुझसे मिल सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज पूछिए। फ्लोर इज ओपन फॉर यू। आजा आजा। नाम बताओ। नाम, आपका नाम? अविनाश ठाकुर साहब, बोलिए। बोलो भाई, बोलो। हाँ भाई, फिर से समझो सर, मैं आपको फिर से बताता हूँ। स्टार्टअप में स्टेक एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एम आई राइट? मैं आपको समझा देता हूँ। कितने लोगों को समझता है ये स्टार्टअप में? ठाकुर साहब ने जो क्वेश्चन पूछा, स्टार्टअप में ये कोई बम तो नहीं फूटने वाला है? नहीं। सो स्टार्टअप में स्टेक कितने लोगों को समझता है? समझता है, कुछ लोग समझता है। बेसिकली क्या होता है, जब किसी स्टार्टअप में पैसे लगाए जाते हैं तो इन्वेस्टर या मेंटर आपसे कुछ शेयर लेता है, उस कंपनी में कुछ हिस्सेदारी लेता है। वही बात कर रहे हैं ना आप? तो सबसे पहले आप समझिए कि आपकी कंपनी आपका घर है। आपकी कंपनी आपका घर है। आपको ऐसा ऑफर कैसा लगेगा? भाई साहब मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, किचन दे दोगे क्या? ऐसा कहता, कठिन है ना थोड़ा? या कोई बोलता अच्छा ऐसा करो बेडरूम दे दो ये वाला। थिंक लाइक दिस। हमेशा स्टार्टअप आते हैं, बोले सर मेरा नया आइडिया, आप अगर पैसे दोगे ना तो सर 50% आपको दे दूंगा। डोंट डू दैट। वो आपका घर है, आपका घर है। कोई दूसरा आदमी उसमें आके बैठ जाएगा जिसको आप जानते भी नहीं। तो सबसे पहले अपनी वैल्यूएशंस को थोड़ा बेहतर करें। स्टेक शुरुआती स्टेज में 5-10% से ज्यादा आपको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए।
क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब आप जर्नी में आगे बढ़ेंगे और आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से मिलेंगे और आप अगर किसी दूसरे को सारा स्टेक दे चुके होंगे तो वो आपसे स्टेक काय मिलेगा? आपके पास आपका ही घर नहीं बचा, दूसरे रह रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? वो आपको पैसे क्यों देगा? अपने ही घर नहीं बचा, किसी में कोई रह रहा है, किसी में कोई रह रहा है। सो हमेशा स्टेक जितना कम दे सके, अपनी वैल्यूएशन बढ़ाइए, अपना काम बढ़ाइए, अपना नाम बढ़ाइए, बिजनेस बढ़ाइए और फिर निगोशिएट करिए। वी विल टीच यू हाउ टू निगोशिएट दैट ऑल्सो, टर्म शीट एंड ऑल। एंड उसके बाद पर हमेशा इक्विटी कम ही दीजिए। वो डिपेंड करता है कि आपका क्या बिजनेस है, आप किस बिजनेस से आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन स्टेक हमेशा कम रखिएगा, 10% से ज़्यादा शुरुआती स्टेज पे। और अगर कोई मेंटर के रूप में आपसे एक स्टेक मांग रहा है तो 1 से 2%, ठीक है, उससे ज़्यादा आप अपने घर को इतनी जल्दी नहीं दे सकते। चलिए सर, ठीक है सर, थैंक यू। और कुछ? Sir. गुड आफ्टरनून Sir, my name is Gaurav Mishra. Sir, I have this doubt that fear of theft of idea. Fear of theft of idea. हाँ, भाई साहब, सबसे अच्छी बात तो ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आपका आइडिया चोरी हो रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये लेडीज लोग बता सकती हैं, यूट्यूब पे दुनिया जहान की विधियां आती गुजिया कैसे बनाएं, लेकिन सबसे अच्छी नहीं बनती, जिससे बनती, जिसने डाली होती है ना, उसी की रहती है। ऐसे ही अपना आइडिया जो सोचता है और जो उसके बारे में सोचता है, देखिए मैं आपको बड़ी अच्छी घटना बताता हूं। मैं भारत में, जब आप शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे, 1997-98, 99 मैं वेबसाइट की दुनिया में था। तब वेबसाइट नई नई बनती थी। तो एक मेरा कस्टमर था, आलोक राज गढ़िया। आलोक राज गढ़िया ने मेरे को सुबह 6 बजे फ़ोन किया कि यार मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूं, lostandfound.com। lostandfound.com। जितने लोगों के पासपोर्ट, पर्स, क्रेडिट कार्ड खो जाते हैं, रास्तों में पड़े मिलते हैं, वो अपना यहां पर अपलोड कर दें कि मेरा खो गया, और जिसको मिल जाए वो कर दो, क्योंकि दूसरे के आधार का अपन क्या करेंगे, तो कम से कम उस व्यक्ति को मिल जाए। 99 की बात कर रहा हूं साहब। सुबह 6 बजे उसने मुझे फोन मिलाया। मैंने कहा भाई मैं .com अभी ऑफिस जाके मेरे लड़के को बोलूंगा, वो बुक करेगा। मैं 10 बजे ऑफिस गया, 10:30 बजे आलोक राजगढ़िया से मिलने गया। आप मानोगे नहीं, सुबह 3 बजे यूके में किसी ने lostandfound.com बुक किया था। माने जिस वक्त आलोक राजगढ़िया सोच रहा होगा, उस वक्त कोई और भी सोच रहा था। मैंने आलोक राजगढ़िया के लिए lostandfoundindia.com बुक किया उसके बाद। आप समझ रहे हैं? लेकिन lostandfound.com जिसने जो बुक किया और इसने किया, दोनों का बिजनेस करने का सेंस अलग अलग था। तो एक बिलियनर बन गया और इनका बंद हो गया। तो आइडिया बहुत लोगों के पास होता है, पर उसको एग्जीक्यूट करने की ताकत, जैसे मैंने कहा ना, ढेरों लोगों के पास सोल्यूशन होते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना और सोल्यूशन के तरफ ले आने का मद्दा बहुत कम लोगों में होता है ना? तो अगर आपके पास है तो डरिए मत, कोई कुछ नहीं चुराता आपसे, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में वैसी चीज आई होगी, हजारों के दिमाग में, लेकिन आप अगर उसके एग्जीक्यूटर हो और वो प्लॉन आपने बनाया है, कोई उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। हम सब मिलके भी दोबारा ओला नहीं बना पाते। कितना सरल मॉडल है। अब तो पता है ना सबको, अपने अपने ओला बना पाते हैं क्या? नहीं बना। जितने भी आइडिया आज की डेट में यूनिकॉर्न्स हैं, हर आदमी सोचता है तो मैंने भी सोचा था, पर होता नहीं ना ऐसा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, नथिंग विल बी देयर। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता हो कि आपने कुछ ऐसा सोच लिया हो कि डायरेक्ट ब्रह्मा जी प्रकट हुए और आपको बोला ये वस्तु तुम्ही के पास है, तो फिर अपन नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करा देंगे, ठीक है? पर ऐसा कुछ होता नहीं। अगर आप सोच रहे हैं तो वो आपका ही है, कोई उसको चुराता है, ठीक है? चलिए, थैंक यू। यस बॉस। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून।
सर आई एम देव गुर्जर एंड माय क्वेश्चन इज कि सर आपके पास अगर कोई आइडिया लेके आता है तो आप उस पे इन्वेस्ट करते हो या आप देखते हो कि एंटरप्रेन्योर जो आया उसका एटीट्यूड क्या है या उस पे इन्वेस्ट करते हो? बहुत शानदार। मैं आप पे ध्यान देता हूँ, उस पे व्यक्ति कौन है। जब इन्वेस्टर भी पैसा लगाता है तो वो व्यक्ति और टीम पे ही पैसा लगाता है, मैं राइट। आइडिया तो होता ही है, वो इनोवेटिव होता ही है, लेकिन उसको करने की जो दम है वो किस में होती है? वही आप में होती है। आपके दिमाग में कितना ही नया आ रहा हो लेकिन थोड़ी देर बाद फुस्सी हो जाओ तो क्या फायदा। हम कई चीजें पूछते हैं, कई बार कैसे होता है मालूम है, यंगस्टर्स आते हैं, आइडिया सर जबरदस्त शुरू कर रहे हैं, 1 साल बाद 20 लाख का सीटीसी मिल गया, भग गए। तो हमको ये भी देखना पड़ता है क्योंकि पैसे तो हमारे बेकार हो गए। तो सर मतलब हम आदमी पे पैसा लगाते हैं। तो सर आप मतलब कैसी स्पीचेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं? आप एक बार कुछ आइडिया हो तो वो आप जब मुझसे मिलेंगे तब हम बताएंगे, सबके सामने आपकी क्वालिटी बतला दूंगा तो फिर। थैंक यू सर। पर मैं हमेशा और ज़्यादातर इन्वेस्टर भी टीम पर और व्यक्ति पे पैसा लगाते हैं। आइडिया तो ठीक है, बस आप समझ के देखिए ना, जैसे आपके शिक्षक आपको जब फर्स्ट ईयर में सुनते होंगे तो फर्स्ट ईयर में सबका सीवी एक जैसा ही होगा, ऑलमोस्ट बायोडाटा एक जैसी होगा, 12वीं पास की होगी, इस स्कूल से की होगी या उस स्कूल से की होगी, और टीचर्स को लगभग ये भी पता रहता होगा कि इन सबका एवरेज स्किल कितना, इनको क्या क्या आता होगा, मैं राइट मैम। ऑलमोस्ट वही स्थिति वो सारे इन्वेस्टर्स की भी होती है जो 30 साल से करोड़ों अरबों रुपए कमा के बैठते हैं। उनको मालूम होता है कि इतना जो 22 साल का लड़का है उसको कितना आता होगा, गिरेगा पड़ेगा, इसको बहुत सारी चीजें तो पता ही नहीं होंगी अभी। सो वी ओनली इन्वेस्ट ऑन टीम पर्सन। आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट बट टीम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर। माने आज की डेट में तो ये स्थिति है कि इन्वेस्टर तब तक पैसा ही नहीं लगाता जब तक आपकी टीम बेहतर न हो। Sir, I am bhai. Saharsh Jain and my question is regarding that only. In the initial years, in the initial phase, how should we select our co-founders and the team? गर्लफ्रेंड या पत्नी कैसे ढूंढते हैं? No, sir. In like how to trust? Should we start with our friends only तभी तो पूछ रहा or? हूँ पत्नी कैसे ढूंढते हैं। पत्नी मतलब लॉन्ग टर्म, है ना। को फाउंडर मतलब आपके घर में रहने वाला दूसरा व्यक्ति, कैसे ढूंढते हैं उसको? बस उतना ही करना होता, ठीक है। मतलब आप जिस व्यक्ति के साथ लंबे समय तक चल सको वही को फाउंडर है। उसके लिए कोई पैमाना नहीं है, मैं राइट में। जो आपको लगे कि आई एम कंफर्टेबल विद दिस पर्सन, मेल और फीमेल, और वो व्यक्ति मेरे साथ इस दौड़ में लंबी दूरी तक दौड़ेगा, वो को फाउंडर। भाई आपकी तो ट्रेन चल पड़ी, अब उस ट्रेन में कोई 100 किलोमीटर जाने पर उतर गया तो आपका को फाउंडर और बिजनेस दोनों ही खत्म, है ना। उसको तो लंबी दूरी तक आपके साथ जाना है। तो बिल्कुल वैसे ही ढूंढना है जैसे शादी में अपन पति या पत्नी ढूंढते हैं, इस उद्देश्य के साथ कि भैया छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आपके मम्मी पापा जैसे चले जा रहे हैं ना, ऊपर नीचे होती रहती है, लड़ते झगड़ते रहते हैं, होता है कि नहीं ऐसा, लेकिन चलते रहे, तभी तो आप सब आगे बढ़ रहे हो ना, क्योंकि वो स्टेबल है। तो ऐसे ही आपको भी अपना को फाउंडर ऐसे ही ढूंढना पड़ता है, और फिर वो जो उसकी टेक्नैलिटीज हैं वो अपन बाद में बात कर लेंगे। लेकिन को फाउंडर ढूंढने का सबसे आसान तरीका है कि आपका दूसरे व्यक्ति से ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, कि वो व्यक्ति हर समय में, क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सभी बिजनेसेस में गरीबी में सब साथ होते हैं, गरीबी में, इसलिए स्टूडेंट लाइफ में सब साथ होते हैं, जेब में कुछ होता नहीं जाता तो हर आदमी जुगाड़ में लगा रहता है कि दूसरे की जेब से समोसा खा लें। सो गरीबी में सब साथ रहते हैं, अमीरी में लोग बिखरते हैं, बहस करते हैं, किसने ज्यादा काम किया था, किसका इनपुट ज्यादा था। तो वो व्यक्ति जो दोनों समय आपके साथ बना रहे, उस व्यक्ति को को फाउंडर बनाना। ठीक है, Thank you, sir. चलिए, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ पवन सोनी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि किसी कंपनी की मिनिमम वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए अगर उसे एनईसी या बीएससी में लिस्ट होना है तो? हाँ, एनएससी या बीएससी में लिस्ट होना है तो, है ना। जी तो अगर आप नया कंपनी शुरू कर रहे हैं, और जब हमने अपनी कंपनी लिस्ट की 2017 में,
तो हमने SME एक्सचेंज पे की। तो आजकल एक SME एक्सचेंज आता है। SME एक्सचेंज मतलब जो छोटी कंपनियों के लिए होता है, उसमें छोटी कंपनियों के लिए वैसे कंपनी 3 साल से ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए, प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, मिनिमम 25 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए, सब है उसमें। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपकी कंपनी में पिछले 3 वर्षों में 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ रहा हो तो आप SME एक्सचेंज पे IPO ला सकते हैं। वर्तमान स्थिति आने वाले समय में 1 आध 2 4 साल में हो सकता है मैं आपसे कहूँ कि आपके इसमें शायद 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट हो, नेट प्रॉफिट, नॉट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट। अगर पिछले 3 साल का 1 करोड़ के एवरेज में आ रहा हो, आपको पब्लिक से जल्दी प्रतिसाद मिल जाएगा। कानून के हिसाब से 25 लाख रुपए आपके प्रॉफिट होना चाहिए। सर वन मोर क्वेश्चन, अगर किसी कंपनी का लिस्टिंग नहीं होता है तो सर स्टेक मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं? मतलब जैसे किसी को भी 5% या 10%? तो वो क्या है, आप देखिए आजकल प्राइवेट वैल्यूअर भी उपलब्ध हैं, आप वैल्यूएशन करा भी सकते हैं अपनी कंपनी का। ज़रूरी थोड़ी नहीं कि आपका वैल्यूएशन होने के बाद ही आपको IPO लाना है, ठीक है। वैल्यूएशंस करने के लिए बहुत सारे लोग उपलब्ध है, यही कर देंगे आपका वैल्यूएशन, आपकी कंपनी का वैल्यूएशन। ऐसे बहुत सारे वैल्यूएशर हैं जो ऑफिशियली आपका वैल्यूएशन कर सकते हैं। सर स्टेक करना मतलब लीगल है? स्टेक सेल करना लीगल है? हाँ, खूब लीगल है जी सर, थैंक यू सर। अपना घर में किसी को कुछ भी बेच दो, उसमें क्या इलीगल है, ठीक है। और कुछ? वो उधर स्मार्ट लड़का बैठा, उसको यार। सर माँ साहब शालीन चौधरी। बोलो भाई सर साहब। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम कोई नया आइडिया पे वर्क करते हैं तो हमें 10 लोग डाउनफॉल करते हैं, हमें मतलब डिमोटिवेट करते, तो उनसे कैसे बच के रहें? शेर की कहानी आपको, इसलिए मैंने शेर की कहानी सबसे पहले सुनाई। शेर की कहानी में किसको भरोसा होना चाहिए अपने ऊपर? खुद पर। शेर को। अगर वो दिन भर ये सोचता रहेगा कि यार ऊपर चढ़ जाता है, ये तो तेज दौड़ता है, हिरन तो मुझसे बहुत तेज दौड़ता है, तो शायद शिकार ही नहीं कर पाएगा कभी। ऐसा होगा ना। सोचो अगर शेर की जगह अपन हो, अपन सोचें और यार दौड़ता है, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। शेर अपन है। अगर अपने को अपने आइडिया पे भरोसा है तो दुनिया तो बोलती रहती, काम, ठीक है। पर ये जरूर देखिएगा, जैसे मैंने आप दोनों को कहा कि ब्लाइंड नहीं चलना। किसी मेंटर को साथ में लीजिए, किसी इंक्यूबेशन के साथ आइए और उनसे पूछिए कि ये जो मैं सोच रहा हूं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपके यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम में ज्यूरी था और किसी 4th ईयर का बच्चा था आपके यहाँ से ही, 2016 की बात है। उसने एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट बनाया आपके RGP में कि वो घर से जितने बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनको मम्मी का खाना बड़ा मिस करते हैं, वो घर का खाना। तो उसने क्या किया, घर के खाने को वो बना दिया। वो घरों से टिफिन लेता था और बच्चों में खाना सप्लाई करता था। उसका नाम भी ऐसे कुछ था कि मम्मी के हाथ का किचन टिफिन, ऐसा कुछ था। देखिए सुनने में कितना बढ़िया है ना। पर मैंने ही रोका और मेरे साथ भी एक साथी ने रोक दिया। हमने कहा भाई इसको बड़े लेवल पे नहीं ले आ पाओगे। बोला क्यों सर? मैंने कहा कोई भी मम्मी अपने किचन में फूड इंस्पेक्टर को नहीं आने देगी, FSSAI लाइसेंस नहीं लेने देगी। तो जब तक शौक है तब तक अच्छा है, पर बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये लीगैलिटी में नहीं जा पाएगा। आपके हर किचन में हर मम्मी जो 4 टिफिन बना रही है उसको FSSAI लाइसेंस लेना पड़ेगा ना फूड इंस्पेक्टर से। फूड इंस्पेक्टर उसको देखने आएगा, इंस्पेक्शन करने आएगा। ये आपके किचन में लागू होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए आइडिया अच्छा है पर बिजनेस मॉडल नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप किसी मेंटर से, इंक्यूबेटर से जब आप मिलते हैं, सो ही विल टेल यू दैट ओके फाइन, दिस इज नॉट पॉसिबल। आपका आइडिया बहुत खूबसूरत है लेकिन धरातल पे ये शायद सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ठीक है भाई। थैंक यू सर। अरे वो एक और लड़का था, अच्छा था, हाँ वो बैठा। Sir, my name is Anurag Pali, and first of all, before asking you a question, I appreciate you. अच्छा Sir. मेरे को Yes, sir. ताली बजा दे भाई एक बार। Sir, ये तो सुन लीजिए किस लिए। Sir, the way you are sitting there is the perfect example of self-confidence. अच्छा ऐसा, थैंक यू सर। बोलो बट। Sir, if let us assume that you are a student here and you got up an idea. You got up an idea. बिल्कुल। A dream mixed with an objective. Then what is your first step? जब आपके पास आइडिया आ जाए तो आपके यहाँ पर टीचर्स हैं, आपके इंक्यूबेशन सेल है, इनोवेशन काउंसिल है,
सबसे पहले उनके पास जाइए And जो आपके sir- इंटरनल रिसोर्सेज हैं, और उनसे डिस्कस करिए कि जो आपका आइडिया है ये किसी यूजफुल है भी कि नहीं। वो आपको गाइड करेंगे कि आपको, उनको लगेगा, टीचर्स तुरंत बोलेंगे, क्योंकि टीचर्स एक ऐसी कम्युनिटी होती है जो आपको हमेशा ही बढ़ना देखना चाहिए। उनके जीवन का एक ही गोल होता है कि मेरा बच्चा आजकल IAS है, जिसको मैंने पढ़ाया था वो इस बैच में है, आजकल वो दुनिया कैसा है, am I right? उनका लास्ट का गोल यही है। तो वो आपको हमेशा क्या बोलेंगे, यार आपके तो इसमें बड़ा अच्छा दिख रहा है, ऐसा करते हैं आप, मैं XYZ हमारे शहर में इंक्यूबेशन सेल है, उनसे कनेक्ट करा देती हूँ, या योर मैडम विल कॉल मी एंड से कि आप एक काम करो, एक लड़का है, अभी मैं बैठा था 10 मिनट नीता मैडम के साथ, तो उन्होंने मुझसे कहा 2 बच्चे हैं उनसे जरूर मिलिएगा आप। हाँ 2 बच्चे हैं जिनसे, देखिए वो जबकि पहली बार ही मुझसे मिली हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि 2 बच्चे हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं नया। सो व्हाट दे डू, दे विल कनेक्ट यू टू समबडी हु इज डूइंग दैट थिंग। Thank you, sir. सोचिए, अच्छा सोचने में समय निकालिए। चलिए सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाकी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और मेरे को क्या, मैं नंबर नहीं दूंगा, नहीं तो क्या व्हाट्सएप बहुत आते हैं, और मैं आप बच्चों, और बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालूम है क्या है, आप सब यार रात को लेट जगते हो यार। और मैं बुढ़ा आदमी, शुरू में जवान था जब मैंने स्पीच शुरू की थी, लेकिन अब मैं 1.5 घंटे बोलने के बाद बुढ़ा हो गया हूँ। तो क्या होता है, 12, साढ़े 12, 1 बजे पूछते, सर मेरे को ऐसा लग रहा है। तो मेरी पत्नी कहती, भाई सो जाओ यार, ये रात को 1:30 बजे कौन है जिसको क्या लग रहा है। लेकिन आपके साथ क्या है कि आप लोग सब जगते ही उसी वक्त, am I right? तो आप लोगों को सारे विचार उसी वक्त आते हैं जब हमारे सोने का टाइम हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा डरता हूँ नंबर बच्चों को देने में कि भाई ले तो लो, वो वेबसाइट पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी मेरा नंबर है, फेसबुक पे भी मेरा नंबर भी डाला हुआ है, पर आप लोग कॉल मत करिएगा। जिसको भी मुझसे मिलना हो वो उस पर व्हाट्सएप करिएगा। मैं व्हाट्सएप देखता हूँ, ईमेल भाई मेरा ये देखता है, मेरे जितने ईमेल है वो ये देखता है, इंस्टा ये देखता है, जितने भी इस तरह के जो पब्लिक प्रोफाइल हैं वो उनको ये देखते हैं। व्हाट्सएप केवल मैं देखता हूँ, ठीक है। तो मुझे प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते नहीं आता, वो सब इन लोगों को आता है। तो ऐसे कोई भी कठिन सवाल हो तो मुझसे मत पूछना, मुझसे केवल व्हाट्सएप करना, लिखना मैं RGPV में स्टूडेंट हूँ और मेरा ये नाम, ठीक है, फिर अपन मिल सकते। फोन मत करना क्योंकि मैं अननोन नंबर उठाता नहीं। चलो भाई, और कोई? अरे लड़कियों ने एक भी सवाल नहीं पूछा, कोई एक पूछ लो ताकि सफल हो जाए जीवन। कोई बात नहीं, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं। मालूम है एक, अब ये जो अर्णव गुप्ता को 10 करोड़ मिले ना, उसने कितने इन्वेस्टर को पिच किया होगा बताओ? 116 प्रेजेंटेशन किए, कितने किए? तो पहले 115 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया उसके आइडिया को। So he made 116 presentation and most of the presentation is on Zoom at night from 12 to 1, क्योंकि वो विदेशी इन्वेस्टर, उनके यहाँ सुबह हुई तो 115 लोगों को तो समझ ही नहीं आया। मेरे पास भी ऐसा हुआ, मेरे में भी 2-3 ऐसे इन्वेस्टमेंट रह गए मेरे, वो इतने बड़े हो गए कि मैं आज दुखी हो रहा हूँ। So it's not bad। अगर आपका इन्वेस्टर आपको नहीं समझ पाता, अब जैसे मैं ही हूँ, मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, अब मेरे सामने आप लोग सब इंजीनियर हो, आप बहुत बड़ा कोई एक कठिन सा डेटाबेस रिलेटेड कोई अगर प्रोडक्ट ले आओगे तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा, एम आई राइट? क्योंकि मैं इंजीनियर नहीं हूँ। कोई मेरे से बोले मैंने रोबोटिक पे काम किया, वो रोबोटिक पे बहुत सारी चीजें बोल रहा होगा लेकिन मुझे संबट ही नहीं पड़ रहा होगा, एम आई राइट? क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री से नहीं हूँ। तो हो सकता है मैं उतनी जल्दी उसको फंड भी न कर पाऊँ। तो घबराइए मत, वो व्यक्ति आपको मिल जाएगा जो आपको फंड करेगा। तो सर कब तक हम एक आइडिया के पीछे जा सकते हैं कि लाइक बिकॉज हमें लगता है कि वो हो सकता है, बट देखिए सबसे पहले एक चीज समझिए, आप सबको बता देता हूं, फंड ना मिलना बाहर से इज नॉट अनसक्सेसफुल। कई लोगों को लगता है पैसे नहीं मिले तो अपन तो अनसक्सेसफुल। नो 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 नो, सक्सेस का पैमाना, अब हम लोगों को तो कोई पैसे नहीं मिले 25 साल पहले, 20 साल पहले। पब्लिक ने अगर आपको फंड नहीं दिया तो बैंक से फंड मिलता है, बिजनेस से फंड मिलता है, और फिर भी आप बिजनेसमैन। जो कंपनियां बड़े बड़े IPO लाती हैं, अडानी हो चाहे अंबानी हो चाहे कोई भी हो, उनको किसने फंड किया था? किसी ने। वो खुद ही बड़े हुए और बाद में IPO लाए। आप भी कर सकते। अगर आपके आइडिया को आज किसी ने फंड नहीं किया तो हो सकता है 5 साल बाद करे।
आप अपने आइडियाज़ पे लगे रहिए और उस पर काम करते रहिए। 25 साल में, 20 साल में, 15 साल में टाइम लगता है इन्फोसिस बनने में, है ना। इन्फोसिस को किसने फंड किया था, लेकिन अगर आप इन्फोसिस बनना चाहते हैं तो आपको समय तो लगाना पड़ेगा, है ना। थैंक यू सर। हाँ भाई, यस गुड़िया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आ गए, चलो भैया नेक्स्ट स्पीकर आ गए, मैं जाता हूँ। एक लास्ट पूछ लो आप, कैसी हैं आप? हेलो।